Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, everyone watching us right now, we are with Jale Sarhadi. I hope I'm pronouncing it right. And You're first of pronouncing all, it absolutely correctly. oh, that's great. And I'll ask you about what does that mean and all. Yeah. First of all, ma'am, thank you for your time. And frankly, I'm thrilled. I'm excited because it's an honor for me to interview you. You're a gem in the industry, the Pakistani drama industry. Thank you so much. And That's very, very kind of you. it's really an honor for me to interview you. And Inspire Zone magazine is conducting interviews from all over the world. We have interviewed Turkish drama serial actors, actresses, and even recently we did a Lebanese news anchor as well. Finally, we are doing an interview of the Pakistani. I would call you a living legend. You know, you have spent a lot of time. You have a That journey. is so Yes, you have a sweet. journey in the Pakistani industry, and I appreciate it as well. And people, you know, your fans actually says a lot about you. I've watched your recent interviews as well. So thank you very much for your time. And we'll start it. Okay. And tell us something about Jale Saradi. Who is she? Her education, family background. How was her childhood? जो भी आप कहना Okay. So, सबसे पहले तो मेरा नाम जो है, which is the most asked question. मेरा नाम जो है वो मेरे father ने रखा था. It's a Persian word. It means prosperity, खुशहाली. It's basically pronounced Jole, but it's easier to say Jale than Jole. But Jale bhi, it's not easier. People have their own versions of my name. Someone calls me Zale. Some people call me Yale. But the correct pronunciation is Jale. My family background, if I go in terms of how I came into the business, तो मेरा जो दरियाल है वो arts and performing arts के साथ associated रहा. From my dada and my father's nana, actually, it started. His name was Rafi Ghaznavi. He was one of the biggest, greatest musicians of Southeast Asia. Then my grandfather, Zia Saradi, was a film director, a writer, a cinematographer. उन्होंने poetry भी बहुत की. उनका नाम था Zia Sarhadi. And then my chacha, who's also very well known in Pakistan, his name was Khayyam Sarhadi, one of the most amazing human beings and a fantastic actor. Yeah, so everyone knows him. Yeah, so मेरे जो trajectory है, मेरा जो journey into this business was, I can say, लिखा हुआ था, मुझे आना था, मुझे हमेशा से interest था. और मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो fine arts में और psychology में की. I've done my honors in fine arts and my MPhil in psychology. So वो मेरी education है. And I basically started off wanting to fund my education from college level, and it became a career. So here I am. Oh, that's great. And you were telling me about your name, Jale, right? क्योंकि वो Jale जो झालावाड़ी होती है hails from Urdu language के अंदर. लेकिन ये I believe it's a Persian name. It's a Persian word, Jale. झालावाड़ी से लोग connect करते हैं, but basically Persian word. विकिपीडिया पे किसी ने आपका नाम लिखा है. Also can also be pronounced as Zille. I know. I've tried to change that. I've tried to change that. मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको change कैसे करूं. Which is why a lot of people pronounce it Zille, but Zille नहीं है. ZHALAY can't be Zille. Yeah, it cannot be. Yes. Okay. So you were a VJ also. You have done acting, modeling. You know, you're a YouTuber as well. You're all over the place on the Instagram as well. So it's a yes. that you're exploring now. What are your current projects right now? What are you doing in terms of modeling or acting? What is going on in Jale's life right now? Okay, so I like doing multiple things. I've never wanted to stick to one thing, which is why this career suits me a lot. With har roz koi nayi cheez hoti hai. It's always an adventure. Every project is something, brings something new to the table. And mundane लोगों की existences होती हैं जो एक job में फंसे हुए होते हैं, वो हमारी नहीं है. मैंने थोड़ा सा अपने facets और बढ़ाए हैं कि I can sing. So I recently, 2 years ago, started actually learning how to sing, and I've sung 2 original songs, बल्कि 3 original songs, and मेरा Kashmir Beats करके एक
शो आया था जिसमें मैंने अपना एक गाना लॉन्च किया, बंजारे. And इसके अलावा YouTube was something that I wanted to do because I think everyone's now shifting towards the digital age, and that is the way to go through. मेरा अभी एक OTT platform पे I've done 2 projects. एक फिल्म की है मैंने, एक वेब सीरीज की है, वो बहुत जल्द आने वाली है. I can't talk much about it is because जब तक उसकी promotions नहीं start होंगे तब तक मैं बात नहीं कर सकती. बट एक मेरा सीरियल इस वक्त एक्सप्रेस पे चल रहा है, तेरा आंगन. एक मेरा सीरियल अभी हम टीवी पे आने वाला है, यार ना बिछड़े. एंड I think that's about it. So I'm doing everything simultaneously. I'm doing my YouTube, my TV, my OTT. Hopefully फिल्म जो है वो बड़े पर्दे पे आती है, देखें जब सिनेमास खुलते हैं तो फिर क्या होता है. Wow, looking forward to see you on the big screen as well, Jale. Hopefully, inshallah. आपने जितने भी hopefully inshallah आपने जितने भी characters किए हैं, I have seen a few of your dramas as well. To be frank, not all of them, but character बहुत different होते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा different characters होते हैं. So what is that one thing you see in the script to say yes, हाँ ये project तो मैंने करना ही करना है. अच्छा, मेरा हमेशा से जो है from the very get go I've tried to not do the same thing over and over again. So basically हम टीवी का अलमिया ये है कि जब आपको कोई एक कैरेक्टर ऑफर होता है और वो आ जाता है और वो प्रोजेक्ट हिट हो जाता है, तो उसके बाद आपको सिर्फ उसी किस्म के कैरेक्टर्स बार बार मिलते हैं. सो मैं करिए लेती हूँ, मेरी पर्सनल जो मैं आपको बताई थी, मुझे वेरिएशन चाहिए होती है इन लाइफ. सो व्हाट आई डू इज मैं कैरेक्टर्स इस तरह से पिक करती हूँ कि स्क्रिप्ट ऐसी हो जिसके अंदर वो कैरेक्टर अगर मेन ना भी हो, जो कि मेन लीड और हीरोइन और व्हाटएवर लोग देखते हैं वो ना भी हो, बट उस कैरेक्टर की वजह से स्टोरी में कोई चेंज या स्टोरी में कोई उस कैरेक्टर की वजह से ट्विस्ट टर्न इंपॉर्टेंस उसकी बन रही हो. एंड व्हाट डू आई हैव टू गिव टू दैट कैरेक्टर. सेकेंडली, I try to look for characters which are completely an antithesis of my own personality. The challenge is then कि जब आप अपने से मुख्तलिफ किसी शख्स की अक्कासी कर रहे हैं. सो वो तीसरा, डायरेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिर्फ शॉट्स पे फोकस नहीं होना चाहिए. डायरेक्टर को खुद एक्टिंग आनी चाहिए कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सके आपके इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस. बिकॉज़ आई एम बेसिकली अ डायरेक्टर्स एक्टर. मुझे जब तक आगे से जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बताया नहीं जाएगा कि आपने ये एक्सप्रेशन सही नहीं दिया या ये सही दिया, मुझे नहीं समझ आ रही होती. Because I hate looking at the monitor. So these are the 3 major reasons why I pick up scripts, which is why I work very less. Because अगर मैंने एक कैरेक्टर कर लिया और वो पॉपुलर हो गया है, तो मुझे फिर वही कैरेक्टर बार बार ऑफर होता है और फिर मैं उनको मना करती हूँ कि नहीं, I don't want to do this because I've just done it, so I want to do something else. So yeah. So Jale believes in quality, not quantity, right? Absolutely, hands down. That's the way to go, Jale. I missed your singing part because we have decided कि हम आपसे कुछ सुनेंगे, आपसे कुछ अता जरूर होगा हमें, लेकिन वो आगे जाके सिंगिंग के हवाले से भी बात करेंगे. थोड़ा सा पीछे जाते हैं. VJing, you have done VJing as well. सही आपने अपनी स्टोरी बताई कि you wanted to support your studies and whatever your reasons were to work. How did VJing happen? VJing बिल्कुल ही एक different feel है, फिर modeling वगैरह. तो tell us your story briefly. Okay, so basically I started with radio. मेरा जो करियर का आगाज था वो रेडियो से हुआ था और रेडियो पाकिस्तान से हुआ था. जब मैं कॉलेज में थी, मैं एक शो होस्ट करती थी फॉर रेडियो पाकिस्तान कॉल्ड बज़्म तलबा. आई डिड दैट फॉर 6 months. और उनका जो एक क्लॉज था वो ये था कि आप ये तब तक कर सकते हैं जब तक आप एक स्टूडेंट हैं, और आप स्टूडेंट लाइफ से निकल जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो यू कांट होस्ट इट बिकॉज़ द नेम ऑफ द शो वाज आल्सो बज़्म तलबा. सो आई स्टार्टेड विद दैट. Then because my father and my chacha were in the business and बचपन से हमारे घर में लोगों का आना जाना था, और मैं हमेशा से वही जो लोग कहते हैं ना कि सडनली मैं इंडस्ट्री में आ गई, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था. आई वाज ऑलवेज इनटू एक्टिंग, आई वाज ऑलवेज इनटू थिएट्रिक्स, स्कूल कॉलेज के लेवल पे. तो साजिद हसन जो है, द वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान, ही इज आल्सो एन अंकल, मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. उन्होंने मुझे ऑफर किया. अच्छा, जब आप इस इंडस्ट्री में घुस जाते हैं तो एक्टिंग अगर आप कर रहे हैं या मॉडलिंग भी आप कर रहे हैं, तो आप हर चीज एक्सप्लोर करना शुरू हो जाते हैं. सो VJing was also something that came kind of naturally because मुझे गजनफर अंकल ने अप्रोच किया, गजनफर अली,
जिनका इंडस है, और उस उनके थ्रू जो है मैंने MTV मोस्ट वांटेड होस्ट किया। Your journey जी into जी the जी industry from radio, and then you turned out to be a VJ and then modeling. Please जी। continue ओके, where we left. सो बिकॉज मैंने रेडियो किया हुआ था, so which is RJing basically, that means I was a radio jockey at one point. So आप hosting की भी थी, तो hosting became a little easier, and then I started, when I did a little bit of acting, I started hosting shows which were live. So when I got into the knack of it, and हम लोग की एजुकेशन इस किस्म की है कि हमें दोनों जबानों पे कुछ हद तक अबूर हासिल है, उर्दू पे भी, अंग्रेजी पे भी, and to be a good host you need to have a command over languages, and हमारी जो कॉम है उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश से समझ आती है, और बात करते हुए अच्छे लगते हैं, और स्पेशली VJs, थोड़ा बहुत अंग्रेजी स्प्रिंकल कर दिया आपने इधर उधर. So it was kind of a natural progression, and VJing also is connected to music, I believe, and because मेरा म्यूजिक से लगाव था, तो मैं उस तरफ भी निकल गई. मैंने बहुत सारे म्यूजिक शोज भी होस्ट किए हैं, और मुझे गजनफर अली गजनफर साहब जो है इंडस के, उन्होंने फिर MTV मोस्ट वांटेड का होस्ट बनाया. Oh yes, and I remember that. I remember that. Yes. Okay, singing पे और VJing पे आएंगे, लेकिन जो कैरेक्टर्स की हम लोग बात कर रहे थे, the variety of characters you have done so far in your career, तो आपको वो होता है ना, एक हर एक्टर का ड्रीम कैरेक्टर एक करना कि यार मैं वो कोई मतलब एक कोई हैंडीकैप बन जाऊं, या कोई मेंटली रिटार्ड का कैरेक्टर करूं, या कुछ XYZ जितने कैरेक्टर, तो आपका क्या वो ड्रीम कैरेक्टर है जो आप करना चाहेंगे? My dream character is the next one I do. That's always what I say. मतलब, and I'm very very lucky कि मुझे बहुत different किस्म के characters offer होते हैं. So I don't have a particular, like I said, मैं characters repeat नहीं करना चाहती. कभी कभार हो जाते हैं, but मैं repeat नहीं करना चाहती. So अभी जो मैं 2 projects किए हैं, उन दोनों में मेरे characters बहुत अच्छे हैं. अभी मैं एक serial जो मेरा आने वाला है, यारना विश्रे हम TV का, that is a brilliant character. It's a very complicated character of this girl who didn't get much love in life. ना माँ बाप का, ना फिर शादी हुई उसकी, तो बहुत सारी चीजों की उसको चाहत है जो कि पूरी नहीं हुई. So वो कैरेक्टर बहुत मजे का लगा मुझे पर्सनली करके. Then I've done this film जिसके अंदर बिल्कुल ही different facade है मेरा. It's like a completely westernized version of an Eastern girl. I can't say much about that. So the next character which I get offered would be my dream character. That's my answer. That's a good way to answer it. Okay, Jale, ज्यादातर हमने देखा है आपको, आप ड्रामास वगैरह कर रही हैं, सिंगिंग भी करती हैं, बहुत वर्सटाइल हैं. अच्छा, जो मैंने आपको नोट किया है, यू आर अ वेरी हैप्पी टू गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन. वाइब्स बहुत अच्छी आती हैं आपके इंटरव्यूज भी अगर देखो, वो सारी चीजें. इनफैक्ट आपने सिटकॉम्स वगैरह भी किए हैं, मुझे याद है इंडस के जमाने में, उसके बाद भी सिटकॉम्स वगैरह भी किए हैं. इनफैक्ट एक सिटकॉम आप हमारे, मैं जिस इदारे से, मैं न्यूज एंकर हूँ बोल न्यूज में, आपने बोल के लिए भी एक सिटकॉम किया था. तो वो when is it coming or coming out, और sitcoms करने का आपका इरादा है? Because you have that the thing for doing a sitcom or I a love comedy. comedy. Yes, I absolutely adore comedy. I'm just going to do a telefilm for Eid, which is a comedy telefilm. बोल का आके चला गया. It was very unfortunate. They spent a lot of money on it. We made a very nice music video उसके ऊपर बनाई थी, उसके लिए इंट्रोडक्शन के लिए, उसके ट्रेलर एंड प्रोमो के लिए, बट उसके सिर्फ 9 एपिसोड शूट हुए, और अनफॉर्चुनेटली वो जो टीम, इट ब्रोक अपार्ट, एंड वी कुडंट डू इट फॉर फर्दर episodes. But उसके बाद मैंने एक सिटकॉम किया जो ARY के लिए था, and that was जलेबी. That went very well. वो YouTube पे आप जाके देख सकते हैं. It was very very funny. वो टीम बहुत अच्छी है, उनके साथ मैं हंका लो भी कर चुकी हूँ, मैं मम्मी और वो भी कर चुकी हूँ. They're brilliant. Nomi is the director, and Shagufta Appa is there. Shagufta Ijaz. There was Anant Tanveer. There was a very good friend of mine, Ahmed Hassan, who's also extremely talented. So देखिए, कोई अच्छा सिटकॉम अगर मुझे ऑफर होता है तो इंशाल्लाह you'll be seeing me in something. Great. It would the fans would actually love to see you in sitcoms as well. Anyway, थोड़ा हॉबीज की तरफ आते हैं. जाले को क्या चीज पसंद है फ्री टाइम में करने के लिए? What are your hobbies?
मुझे सबसे बुरा फ्री टाइम लगता है, सो आई डोंट हैव मच फ्री टाइम. आई लव कुकिंग, आई अडोर कुकिंग. मैं 12 साल की उम्र से लगभग खाने बना रही हूँ. हमारे घर में सब खाने बनाते हैं. और ये जो मिसकंसेप्शन है कि अदाकार जो हैं और अदाकाराएं जो हैं वो हाथ पे हाथ धर के नेल पॉलिश लगा के बैठी रहती है, मेरी नेल पॉलिश भी उधड़ रही है, देखें ये हाल हुआ है. मैं रोज खाने बना रही होती हूँ, और जब मेरे पास टाइम होता है आई ट्राई टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड से मेरी मुराद हलीम है, जो टाइम कंज्यूमिंग होती है. रोजमर्रा के खाने बनाना इज लाइक, I love reading, I love dancing, I love watching series. अब तो movies से ज्यादा बेहतर series हो गई है. अगर आप Amazon viewer हैं या आपके पास Netflix है, so the world is your oyster basically. So what are you watching on Netflix then these days? What am I watching on Netflix? I just finished The Irregulars. This is a series, अभी नई एक British series आई है. It's loosely based on, you know, Sherlock Holmes से inspired है. उसमें Sherlock Holmes का एक character है, but Sherlock Holmes is not the main in it. So I just watched that, and I saw Bombay Begums. I finished that. इससे पहले Queen's Gambit complete किया था. Then sitcoms की बात आ रही है तो मैं Modern Family, I love Modern Family, वो देख रही हूँ इस वक्त, और Superstore. Oh, that's great. और जो लोग पसंद करते हैं सारी Netflix के ऊपर चीजें, obviously आपका एक इनपुट भी चला गया उनको कि भाई ये प्रोग्राम्स जो अच्छे हैं जो आ रहे हैं. Irregulars का तो मैंने सुना है काफी, it's very awesome in fact. It's really nicely made. मैं रिव्यूज पढ़ रहा था उसका. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. The best part is कि उसमें कोई नोटेबल लोग नहीं है, but they still, you know, जब आप कोई नोटेबल इंसान के बारे में सोचते हैं ना कि ये फलाना एक्टर कुछ कर रहा है, तो इमीडिएटली आपका रुझान उस तरफ जाता है. लेकिन इसमें कोई भी इस किस्म का नहीं है, बट the stories are very nice. The complete series was very well made. Yes, exactly. So how often do you travel? What's your favorite travel destination or holiday destination? Yeah. Okay, so I love London. I love Europe in entirety. बट अभी तो ट्रैवल बैन इस किस्म का लगा हुआ है, और मेरा वीजा भी एक्सपायर हो गया है लंदन का. मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, और हम जा भी नहीं सकते. बट माय फैमिली इज इन द यूएस, so I love certain places there, like I love San Francisco. It's beautiful. LA पूरा वो वाला साइड जो है वो बहुत अच्छा है. Then I really enjoyed Singapore. मतलब एक तरफ कंक्रीट जंगल है, तो फिर एक तरफ जो है वो बिल्कुल बीचेस होने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए. हमारे इंटरनली पाकिस्तान में जो हसीन जगहें हैं वो हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे थोड़ा टूरिज्म बस डेवलप होना चाहिए, बिकॉज आई ट्रैवल टू हुंजा एंड अदर पार्ट्स ऑफ, they're beautiful. I recently went to Gwadar also. वहाँ की भी अगर रोड्स वगैरह और उसकी सिक्योरिटी का, एंड अगर हम टूरिज्म जरा अच्छा कर लें तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट. द बीचेस आर awesome, absolutely lovely. So I think internally Pakistan is gorgeous. We should totally go everywhere. Yes, पाकिस्तान बहुत बहुत खूबसूरत जगह है. इनफैक्ट लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है, और साइज भी डबल है. हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज का साइज है डबल एंड ट्रिपल ऑफ द व्हाट स्विट्जरलैंड इज. सो ये मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं पता होंगे, लेकिन है बहुत हसीन. ये है बहुत बहुत हसीन है, बहुत हसीन है. अच्छा, मुझे अभी आपने फैमिली का जिक्र किया. यूएस में आपकी फैमिली, आपकी बहन होती थी, क्योंकि उनका न्यूज से ताल्लुक था. वो न्यूज, हाँ है ऑब्वियसली है. न्यूज, वो इंग्लिश न्यूज एंकर थी, प्रोग्राम एंकर थी. इनफैक्ट मुझे सही से याद है. सो हाउ इज शी डूइंग? She's all right. She's mashallah doing very well. She went to NYU. She did her masters in broadcast journalism. वो NYU गई थी Fulbright scholarship पे, मतलब 100% scholarship पे. Currently she's in Pakistan. She's working in a digital company, which is also my husband's digital company. तो वो उनके साथ मिलके काम कर रही हैं. She's also an educationist. Zaila worked with Dawn for a while. वो sports anchor रही. उसने Sama TV के साथ भी काम किया as an anchor. बट अभी उसने जरा टीवी की इंडस्ट्री को खैरबाद किया हुआ, एंड वो एजुकेशन और पीआर की तरफ ज्यादा है. ओके, दैट्स ग्रेट. सो योर न्यू सॉन्ग बंजारे came out recently. It was a super hit. जी. And since you're a great singer, we don't really want to miss this opportunity. तो कुछ आपकी तरफ से अगर अता हो जाए, आप मुझे फिर रोकना मुश्किल हो जाता है. मुझे रोकना. Please go ahead. In fact, गाना शुरू.
क्या क्या मैं सुनना डिमांड चाहेंगे लिस्ट आप? लिख के लेकर आया था, मैंने सोचा था पुराने पाकिस्तान, आप पुराने पहले अपने पाकिस्तानी अपनी गाने पसंद सुनना का सुनाएं, चाहेंगे? फिर मैं अच्छा जी, चले। एक करते तो हैं, एक पुराने आपकी पसंद का, एक पाकिस्तान, आपकी पसंद का, एक हाँ, मेरी पसंद का। डन। सो मैं आपको मुझे मुझे पुराने पुराने गाने बहुत पसंद है। मेरे अंदर एक पुरानी रूह है। अगर आप मुझसे अंग्रेजी गाने भी पूछे ना, तो मैं हैरी बेलाफोंटे और रे चार्ल्स एंड इनका जिक्र करूंगी, यू नो। और उनके गाने भी आते हैं मुझे। अभी नए वाले मुझे बिल्कुल अंग्रेजी म्यूजिक समझ नहीं आती, और पुराने पाकिस्तानी गाने भी। आई डिड अ शो कॉल्ड सात से सात तक, द लेट फहमीदा नसरीन, जो अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, वो निदा पाशा की मदर थी। उनके साथ मैंने एक शो किया था फॉर ARY कॉल्ड सात से सात तक. The reason why I'm talking about that show is because when I hosted it, I was like a kid, and इनको पता चला कि मैं गाना गा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझसे 105 पाकिस्तानी गाने याद करवाए थे उस्ताद के साथ, because I was a host, so I had to sing the अस्ताई, और संचाई और अंतरा जो है वो कंटेस्टेंट्स ने गेस करना होता था गाने का. सो मुझे मेरा मुताल्ला जो है वो काफी वसी है पाकिस्तानी म्यूजिक. सो एक सिंगर हुआ करते थे सलीम रजा के नाम से. उनके गाने मुझे बहुत पसंद है. उनकी कैसेट मैंने पूरी रटी थी, सारे गाने रटे थे. सो इनका एक गाना है, गजल है, वो मैं आपको सुनाती हूँ. हुस्न को चांद जवानी को कबल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कबल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कबल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ये तो, और ये बहुत ही मुश्किल गाने. ऑब्वियसली यू सेड यू आर अ ट्रेन्ड सिंगर एज वेल. बहुत मुश्किल ये. दैट्स ग्रेट. तो अब एक नाजिया हसन का अगर हो जाए, या कोई भी मैंने आपका यूट्यूब पे अभी देखा था नाजिया रिसेंटली, हसन के तो बहुत मेरा पिटारी है. मेरा बिछड़ा यार आपने बड़ा अच्छा गाया हुआ है वो. जी 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 जी, वो तो स्ट्रिंग्स जो का. भी, हाँ अच्छा, तो आपको थोड़ा न्यू न्यू सुनना है कोई? न्यू, हाँ एग्जैक्टली, या न्यू. अच्छा जी, तो नाजिया हसन का एक गाना मैं बहुत गाती हूँ, तो वो मैं नहीं गाऊंगी. हाँ, दिल की लगी बहुत गाती हूँ. मेरा आई थिंक मेरा नाम दिल की लगी पड़ गया था एक जमाने में, मैंने इतना गाया था वो. सो आई वुड, ओके, सो जोएब हसन का गाना है. जोएब हसन और नाजिया हसन, आई डोंट नो दोनों ने साथ गाया था या नहीं, बट इट्स सुन मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ आ, मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ. हाँ हाँ, रा 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 रा. इसके वर्ड्स नहीं आते आगे मुझे, बट आई लव दिस सॉन्ग. मैं अकेले ही यहाँ पे तालियां बजाता हूँ, आप अपने लिए भी ताली बजाएं. मतलब यू नो, Thank you. you're awesome, you're awesome, you're awesome. Thank you so Thank you much. for singing these two songs for us. और जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि इंस्पायर जोन मैगजीन के लिए आप हमारे जो व्यूअर्स आपको देखेंगे और जो देख रहे हैं, क्योंकि हमने एज लाइक ऑब्वियसली वी टोल्ड यू, तो जब भी देखेंगे तो इंस्पायर जोन मैगजीन के लिए आपने एक हमें शाउट आउट देना है. For YouTube page, for our Instagram page as well. और उसके बाद फिर हम आपके जाले टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, जो आपका YouTube recent venture है, आप YouTube के ऊपर जो कर रही हैं. So viewers of Inspire Zone magazine, जो आप इंस्टा पे फॉलो करते हैं हमें, यही फैमिली हमें चाहिए. यूट्यूब पे प्लीज गो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन टू इंस्पायर जोन मैगजीन यूट्यूब चैनल, सो यू गेट फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ व्हाटएवर यू वांट टू सी. अगर आपको न्यूज चाहिए, इंटरव्यूज चाहिए, आपको सब मिलेगा यहाँ पे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टार्ट फॉलोइंग राइट नाउ.
दैट्स ग्रेट। और जाले टॉक्स के बारे में बताएं, व्हाट टाइप ऑफ जी कंटेंट डू यू वांट टू प्रोड्यूस, क्योंकि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है इस वक्त, चीजें आती हैं चली जाती हैं, स्टे करना बहुत मुश्किल होता है, जी कंटेंट इतना ज्यादा बन रहा है, पूरी दुनिया से बन रहा है, तो व्हाट टाइप ऑफ एब्सोल्युटली कंटेंट डू यू वांट टू प्रोड्यूस इन योर यूट्यूब चैनल, व्हाट दैट्स अ टाइप वेरी ऑफ कंटेंट डू यू दैट्स अ थिंक वेरी कि आप पर्टिनेंट करेंगी? क्वेश्चन That's a very very pertinent question and मेरे पास बहुत सिंपल सा जवाब है। जो मेरे शो का नाम है वो जाले टॉक्स है, ठीक है। सो जाले टॉक्स का मतलब आई एम टॉकिंग बेसिकली माय थॉट्स, माय ओन कॉन्सेप्ट्स, व्हाटएवर आई वांट टू से एक्सप्रेस। टीवी में सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, आप भी जानते हैं ये। इंटरनेट ने जो है वो बहुत सारे जराए खोल दिए हैं फॉर पीपल, कंटेंट जो है वो बढ़ गया है, कंटेंट की जो लिमिटेशंस हैं वो अब बैरियर्स ब्रेक हो रहे हैं। एंड मेरी कोशिश ये थी कि दुनिया भर में हमारा पाकिस्तान का एक सर्टेन इमेज है, एंड इट इट कैन गो इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑल्सो, क्योंकि जब मैं भी बाहर जाती हूँ तो इट टेक्स अ वाइल। एंड मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रही कि मैं बहुत ही कोई अमेजिंग हूँ या मैं मतलब इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बट लोगों का इम्प्रेशन जो पड़ता है पाकिस्तान के बारे में वो ये है कि जब वो मुझसे मुलाकात होती है या मुझसे बात होती है तो दे थिंक दैट आई प्रोबेबली लिव इन सम अदर कंट्री एंड आई जस्ट बिलोंग टू पाकिस्तान, एक्सपैट हूं मैं। सो आई वांटेड टू बी अ वॉइस of Pakistani female, Pakistani educated female, के हमारी क्या सोच है, हम किस तरह से रहना चाहते हैं, हम किस तरह से व्यू करते हैं अपनी सोसाइटी, और हम किस तरह से अपनी सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं। It's not a feministic show, but I wanted it to be, and I'm trying my level best कि मैं अपना नजरिया दिखा सकूं किसी ना किसी तरीके से। इस पे मेरे सोलो शोज होते हैं जिसमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ आके, और उसमें मेरे इंटरव्यू बेस्ड शोज भी होते हैं जिसके अंदर आई चूज पीपल हु आई थिंक आर इंटरेस्टिंग, और मैं उन सेलिब्रिटीज को या कॉमन पीपल भी जो भी मुझे इंस्पायर कर रहे हैं किसी भी तरह से हैं, क्या पता वो एनिमल एक्टिविस्ट हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, उनसे मैं लोगों की मुलाकात कराऊं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं विच नीड टू बी आउट देयर। सिर्फ नेगेटिविटी जो है वो ही ना उजागर हो रही हो कि पानी के मसले हैं और बिजली के मसले हैं और रोड्स नहीं बनी हुई और याडा याडा जो हम सबके मसले मसाइल हैं, और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे इन चीजों को ज्यादा उछाला जाता है और पॉजिटिव बातें नहीं की जाती, और पॉजिटिव बातें करने नहीं की से जाती। नेगेटिव चीजों के अंदर जो है वो बेहतरी भी आ सकती है। सो आई बिलीव इन स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, and I'm solution oriented rather than just harping on the problem. I would rather कि मैं propose करूं कि इस problem का solution क्या है। So that is what Jale Talks has been so far. And मुझे इतनी व्यूअरशिप नहीं मिली है, मैं कोशिश कर रही हूँ किसी ना किसी तरीके से वायरल हो जाऊं, पर मुझे नहीं पता कैसे वायरल होते हैं। I have no idea. And अभी I YouTube का have had it's all about consistency. I think it's it is all about yeah, consistency. You keep on that is YouTube, one yeah, thing I am. yeah, yes, you keep on putting videos, whatever you think, and you just keep on going. That's Yes, the only true thing I that. think YouTube के अंदर है। On that जी positive note, आप positive बातें करना चाह रही हैं अपने YouTube channel, message आपका to the fans who are watching you right now, what would you like to say? ओके सो मैं एग्जैक्टली यही बात करना चाहूंगी। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत सारी चीजें ऐसी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही होती हैं कि पीपल जस्ट कम एंड स्टार्ट बम्बार्डिंग एक्टर्स और सेलिब्रिटीज, और आप फिर गायब हो गए, रुक जाओ। My final words. So I would only want to tell people this कि ऑलरेडी हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें हम तक आती हैं। तो वही बातें आप सोशल मीडिया पे आके क्यों स्प्यू करते हैं, और स्पेशली मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे देखा है जहां भी कोई सेलिब्रिटी मौजूद हो या जहां भी कोई नोन फिगर हो जिसके मुंह पे आके आप बात नहीं कर सकते, बट आप स्क्रीन के पीछे से हमें हर किस्म की बातें कह जाते हैं। सो इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी और सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, आपको डिलीट कर दूंगी, बट
आप अपनी जिंदगी में इतने उदास और सैड रहेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करने के बजाय इस तरह की नेगेटिव बातें ऐसे शख्स को आके कहेंगे जिसे आप सिर्फ सरसरी तौर पर पहचानते हैं, जानते भी नहीं है, सिर्फ शक्ल से वाकिफ हैं. So I would rather, give that message to all the youngsters who are on social media, that start thinking of building yourselves more than focusing on celebrities who are already earning a lot of money. They're successful, they're known. आपकी एक नेगेटिव बात से किसी का दिल थोड़ी देर के लिए खराब होगा, उसके बाद वो आपको ब्लॉक कर देंगे, ज्यादा मीनिंग नहीं लेंगे उससे. बट आप अपनी जिंदगी के 5-10 मिनट जाया करते थे, वो 5-10 मिनट किसी प्रोडक्टिविटी में निकाल लें, थोड़ा प्रोग्रेस कर लें. I think that is one message I really want to give, because I feel really bad for such people, कि इतनी सैड है आपकी लाइफ्स कि आप आके सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे हैं किसी के लिए जिसको आप जानते भी नहीं है, जिसकी साइड पे आपकी बात का कोई असर नहीं होने वाला. Just build yourselves. Yes, that's a great message. और कुछ लोग सीखें इससे, और मैं उम्मीद करते हैं कि आपकी जो बातें हैं कुछ लोग सीखें भी, क्योंकि एग्जैक्टली इसी चीज की जरूरत है इस वक्त जितना सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है. एग्जैक्टली योर पॉइंट, इसी चीज की जरूरत है. जाले, अगेन thank you very much for your time, and it was an honor for me to interview you. मुझे यकीन नहीं आ रहा. It was an absolute pleasure. Thank you so much for having me. Thank you very much, ma'am, for your time, and all the best for your upcoming projects, your web series, your movies. Yes, hopefully Netflix also. Okay, serial. Hopefully. Hopefully Netflix. Inshallah. Fingers crossed. Inshallah. Netflix पे भी जाएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, और जाले लेके जाएगी Netflix पे पाकिस्तान को इंशाल्लाह. Thank you for your time. Thank you for your time. Thank you, जी. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you very much.